سنا اس نے توجہ. کیسی طبیعت ہے ابی جان کی؟ کیا ہوا تھا انہیں؟ ٹھیک ہے، بی پی شوٹ کر گیا تھا. وہ جو ایک جملہ کہا تھا نا تم نے، انہوں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. ابھی تک پانس بن کر چپ رہا میرے دل میں. بی جان کا دل کمزور تھا، نہیں برداشت کر سکی ہوئی. تمہیں اندازہ ہے بی جان نے مجھے کیا کہا تھا؟ تمہیں اور زویا کو تو میں ہی غلط رکھتی ہوں. بقول ان کے رخصتی سے پہلے میرے تعلقات، تو میری خودکشی کی کوشش نے انہیں مزید شرمندہ کر دیا. اور پھر جب مجھے اس سے بھی آرام نہیں آیا، میرے گھر سے بھاگ جانے کی کوشش نے ان کے منہ پر مزید کالک مل تھی. تم نے مجھ سے شادی کر کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا. بقول بھی جان کے سب مجھ پر، میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے. مجھے اس وقت اپنا نام دیا جس وقت کبھی کبھی انسان حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. بات میری غلطی نہیں ہوتی، میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا. وہ بھی اپنے دل بھی گیا. آئلہ، کوئی احسان نہیں کیا میں نے تم سے یہ شادی کر کے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بی جان تمہیں ایسی تلخ باتیں کہہ سکتی ہے. اپنی مرضی سے کی ہے یہ شادی. عنوان: خاموش گھڑی کا راز. ایک قدیم قصبے میں ایک چھوٹی سی گھڑیوں کی دکان تھی. اس دکان میں ایک پرانی دیواری گھڑی لٹکی ہوئی تھی جو برسوں سے بند تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ گھڑی صرف اس شخص کے لیے چلتی ہے جو اپنے وقت کی اصل قدر جانتا ہو. ایک دن عادل نامی نوجوان دکان پر آیا. وہ ہمیشہ اپنے خوابوں کی بات کرتا مگر ہر کام کل پر ٹال دیتا تھا. دکاندار نے مسکرا کر وہ پرانی گھڑی اسے تحفے میں دے دی. عادل نے گھڑی گھر میں لٹکا دی مگر وہ خاموش رہی. اسی رات اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر دن کا ایک منصوبہ بنائے گا. وہ صبح جلدی اٹھنے لگا، وقت پر پڑھائی کرنے لگا، والدین کا ہاتھ بٹانے لگا اور فارغ وقت میں نئی مہارتیں سیکھنے لگا. چند ہفتوں بعد ایک صبح اچانک گھڑی کی سوئیاں چلنے لگیں. عادل حیران رہ گیا. اس نے محسوس کیا کہ گھڑی دراصل خراب نہیں تھی بلکہ اس کے اپنے وقت کی بے قدری خاموشی کی اصل وجہ تھی. کچھ سال بعد عادل اپنے شہر کا کامیاب انجینئر بن گیا. جب لوگ اس کی کامیابی کا راز پوچھتے تو وہ صرف اتنا کہتا: جس دن میں نے وقت کی عزت کرنا سیکھ لی اسی دن قسمت نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا. سبق: وقت کی قدر کرنے والا انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے. عنوان: خاموش گھڑی کا راز. ایک قدیم قصبے میں ایک چھوٹی سی گھڑیوں کی دکان تھی. اس دکان میں ایک پرانی دیواری گھڑی لٹکی ہوئی تھی جو برسوں سے بند تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ گھڑی صرف اس شخص کے لیے چلتی ہے جو اپنے وقت کی اصل قدر جانتا ہو. ایک دن عادل نامی نوجوان دکان پر آیا. وہ ہمیشہ اپنے خوابوں کی بات کرتا مگر ہر کام کل پر ٹال دیتا تھا. دکاندار نے مسکرا کر وہ پرانی گھڑی اسے تحفے میں دے دی. عادل نے گھڑی گھر میں لٹکا دی مگر وہ خاموش رہی. اسی رات اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر دن کا ایک منصوبہ بنائے گا. وہ صبح جلدی اٹھنے لگا، وقت پر پڑھائی کرنے لگا، والدین کا ہاتھ بٹانے لگا اور فارغ وقت میں نئی مہارتیں سیکھنے لگا. چند ہفتوں بعد ایک صبح اچانک گھڑی کی سوئیاں چلنے لگیں. عادل حیران رہ گیا. اس نے محسوس کیا کہ گھڑی دراصل خراب نہیں تھی بلکہ اس کے اپنے وقت کی بے قدری خاموشی کی اصل وجہ تھی. کچھ سال بعد عادل اپنے شہر کا کامیاب انجینئر بن گیا. جب لوگ اس کی کامیابی کا راز پوچھتے تو وہ صرف اتنا کہتا: جس دن میں نے وقت کی عزت کرنا سیکھ لی اسی دن قسمت نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا. سبق: وقت کی قدر کرنے والا انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے. عنوان: خاموش گھڑی کا راز. ایک قدیم قصبے میں ایک چھوٹی سی گھڑیوں کی دکان تھی. اس دکان میں ایک پرانی دیواری گھڑی لٹکی ہوئی تھی جو برسوں سے بند تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ گھڑی صرف اس شخص کے لیے چلتی ہے جو اپنے وقت کی اصل قدر جانتا ہو.
एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया।
जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा।
वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता, मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी, मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता, मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी, मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता, मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी, मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी।
लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगीं। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगीं। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगीं। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगीं। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया।
जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा।
वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता, मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी, मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता, मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी, मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता, मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी, मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी, बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैंने वक्त की इज्जत करना सीख ली, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। उन्वान: खामोश घड़ी का राज। एक कदीम कस्बे में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। इस दुकान में एक पुरानी देवारी घड़ी लटकी हुई थी जो बरसों से बंद थी।
लोग कहते थे कि ये घड़ी सिर्फ उस शख्स के लिए चलती है जो अपने वक्त की असल कद्र जानता हो। एक दिन आदिल नामी नौजवान दुकान पर आया। वो हमेशा अपने ख्वाबों की बात करता मगर हर काम कल पर टाल देता था। दुकानदार ने मुस्कुरा कर वो पुरानी घड़ी उसे तोहफे में दे दी। आदिल ने घड़ी घर में लटका दी मगर वो खामोश रही। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, वक्त पर पढ़ाई करने लगा, वालिदैन का हाथ बटाने लगा और फारिग वक्त में नई महारतें सीखने लगा। चंद हफ्तों बाद एक सुबह अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। आदिल हैरान रह गया। इसने महसूस किया कि घड़ी दरअसल खराब नहीं थी बल्कि उसके अपने वक्त की बेकदरी खामोशी की असल वजह थी। कुछ साल बाद आदिल अपने शहर का कामयाब इंजीनियर बन गया। जब लोग इसकी कामयाबी का राज पूछते तो